Hi, all the students, welcome once again. And I'm ready with 5 more questions based on vocab. And you people very well know that we are running a series on vocab where we keep discussing 5 questions almost on a daily basis. And believe me, students, whichever exams you people are preparing for, these words you people ought to know. And better vocab, better creativity, and better confidence. So please ensure that keep learning a lot of words with me. So hi all the students, welcome once again. My name is Anil Chaudhary and today is question number 1. A person who is excessively particular about cleanliness or details is, yes come on. ये आदमी बहुत पर्टिकुलर होता है, हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए. कोई चीज अगर यहाँ पर रखनी है तो वहीं पर होनी चाहिए. तो this man is too particular. So what is the correct answer? Can we take first option as the answer, slovenly? Not at all. Slovenly का मतलब तो लेजी होना. एंड स्टूडेंट्स आप देखो, जो आदमी आलसी होता है वो जनरली अनटाइडी होगा, गंदा होगा. स्पेशली आप देखो किसी भी बॉयज हॉस्टल में जो कमरे होते हैं इतने गंदे होते हैं, कई महीनों तक स्टूडेंट्स हम साफ ही नहीं करते हैं. ऐसे जो आलसी लोग होते हैं उन्हें अपन कहते हैं स्लोवनली. अंडरस्टैंड. मेटिकुलस का मतलब होता है यस पर्टिकुलर होना. मेटिकुलस मीन्स टू बी वेरी केयरफुल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, when we people are preparing for some exams, we ought to be more careful. We will have to plan for each and everything and we need to have an eye for detail. So that is the meaning of being meticulous. Third is obsessive. जब हम किसी पर्सन या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो yes, we will be called obsessive. And fourth is fastidious. Fastidious का मतलब होता है स्टूडेंट्स पर्टिकुलर होना, बट fastidious is the word जो हम यूज करते हैं जनरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ cleanliness. So here there are two close choices. One is meticulous and the second is fastidious. And the better choice here is which one? Fastidious. तो fastidious का मतलब है punctilious होना, painstaking होना. यहाँ पर स्टूडेंट्स आदमी मेहनत बहुत करता है क्योंकि इसे साफ सफाई बहुत पसंद है, तो हर चीज व्यवस्थित करने की ये कोशिश करता है. तो दिस मैन इज सिलेक्टिव एंड ऐसे आदमी को बहुत जल्दी से खुश करना इज नॉट पॉसिबल. थोड़ा भी वेरिएशन दिस पर्सन डिसलाइक्स. So that is the reason the correct answer is fastidious. And meticulous होना definitely बहुत अच्छी बात है. चलिए, coming on students, question number 2. Now, what do we call a person who talks a lot, especially about unimportant things? So what do we call such a person? Unimportant चीजों के बारे में बोलता ही रहेगा. Anyway, सबसे common सा word है talkative, chatty. But here students, और क्या possible है? एक और बहुत अच्छा सा वर्ड, एंड दैट इज गैरुलस. यस, गैरुलस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, बट यहां पर स्टूडेंट्स दिस वर्ड इज नॉट गिवन टू अस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व? रिजर्व का मतलब जो बहुत कम बोलता है. अंडरस्टैंड. रिजर्व रहता है, ये बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट नहीं करता. नेक्स्ट, टैसिटर्न. टैसिटर्न का मतलब भी होता है अ पर्सन हु स्पीक्स लेस. टैसिटर्न होना, रिजर्व्ड होना, ये लोग जब भी जवाब देते हैं ना बहुत शॉर्ट में देते हैं, तो कई बार इसकी वजह से इनको बड़ा रूड माना जाता है. अंडरस्टैंड. तो टैसिटर्न अगेन समवन हु स्पीक्स लेस. इंट्रोवर्ट अगेन अ पर्सन जो अपने में रहना पसंद करता है. ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट आदमी हमेशा कम बोलता है, ये एक्चुअली नए लोगों के साथ बहुत जल्दी मिंगल अप नहीं होता, बट पॉसिबली इन हिज ओन कंपनी, among his friends, among his cousins, this person can speak a lot. Okay. The only option which is left is loquacious. The correct answer is third one, LOQ. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कहीं पर भी अगर LOQ आ जाए तो it is related to speaking, it is related to speech. Okay. So can you people find out more such words where the root word LOQ is coming? So loquacious is a person who speaks a lot. Unimportant चीजों के बारे में अनवांटेडली बोलते रहना, तो इसे अपन कहते हैं loquacious. So garrulous can be one of the synonyms here. Now, what do we call a person who is friendly, lively and full of energy? Yes, come on. Yes, this man. आप देखो AI generated कुछ images. मैंने सिर्फ AI को बताया कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड give some images and you people have got beautiful faces. So a person who is friendly, lively and full of energy is known as. So which is the correct answer? Anyone? Gloomy cannot be the correct answer. Gloomy का मतलब तो होता है sad होना. Gloomy का मतलब, can you give some synonyms of sadness? If a person is sad,
लैक्रिमोस। चलो मैं 2-3 वर्ड्स लिख देता हूं, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो ग्लूमी का मतलब होता है सैड। So one synonym can be lachrymose. One more synonym can be teary. एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है स्टूडेंट्स, लुगुब्रियस। ओके, व्हाट एल्स? एक बहुत स्टैंडर्ड का वर्ड जो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, दैट इज मेलांकोलिक। मेलांकोलिक, तो मेलांकोलिक का मतलब भी होता है सैडनेस। ओके, सैड। स्टूडेंट्स, ग्लूमी का मतलब है दुखी होना, सैड होना। और भी अगर अपन सोचेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स पॉसिबल है। यस, समवन हु इज डिजेक्टेड, एब्सोल्युटली। और समवन हु इज डिसोलेट, दैट। इन सब का मतलब ऑलमोस्ट वन एंड द सेम है, दुखी होना, सैड होना। और इतने सारे वर्ड्स जब आप बताओगे तो डेफिनेटली हम भी क्या हो जाएंगे, सैड? बिल्कुल नहीं। आई थिंक जब नए नए वर्ड्स अपन सीखते हैं तो वी ऑट टू बिकम वेरी हैप्पी। एंड स्टूडेंट्स, एनीवे आई एम आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन हु इज lively, happy. So which is the correct answer? Lethargic cannot be the correct answer. Lethargic का मतलब होता है एनर्जी लेस होना। Lethargic का मतलब है टायर्ड फील करना, fatigue फील करना। So that is the meaning of lethargic. Again students, even this word is a very common one. कई बार एग्जाम्स में आता रहता है। तो lethargic का मतलब है टायर्ड होना। Then students, if I talk about vivacious, vivacious का मतलब होता है yes, full of happiness, full of life. You people understand वाइवा? वाइवा कभी हमने कॉलेज में दिया है वाइवा? तो वाइवा में होता क्या है स्टूडेंट्स, हमें लाइव हमें आंसर्स देने होते हैं। तो वाइवा का मतलब ही लाइफ। So when I say vivacious, that means full of life, full of energy. So here the correct answer is this. And इसका बेस्ट सिनोनिम क्या हो सकता है? हैप्पी, यूफोरिक, ecstatic, ebullient, exuberant, elated, okay, congenial, and then students effervescent, या फिर अपन कह सकते हैं क्लाउड नाइन। अगर कोई कहता है ना आई एम ऑन द नाइन्थ क्लाउड, इसका मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो एनीवे स्टूडेंट्स, ये जितने वर्ड्स मैंने बताए, आई एम नॉट राइटिंग देम। पॉसिबली आप सबको इसकी स्पेलिंग नहीं भी पता हो, बट एनीवे फटाफट गूगल करो, फाइंड आउट सम सिनोनिम्स ऑफ vivacious. Coming on students, passive होना, it becomes opposite of active. तो जब कोई पर्सन डल होता है, इनएक्टिव होता है, डोरमेंट होता है, तो उसको अपन कहते हैं पैसिव। एनीवे स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, देयर आर टू विंग्स ऑफ व्हाट वी पीपल आर डूइंग। सो वन, ओके, कैट, एनएमबी एंट्रेंस एग्जाम्स, आई कैन एस कैट। तो एस कैट की स्टूडेंट्स पूरी वेबसाइट एंड यू पीपल शुड विजिट। देयर आर कोर्सेस अवेलेबल फॉर कैट 2026। आप सिर्फ icanescat.com पर जाओ, डेमो क्लासेस को वहां पर वॉच करो। बिलीव मी स्टूडेंट्स, यू विल फॉल इन लव विद द वे वी पीपल आर टीचिंग, एंड fantastic team is waiting to serve you and to ensure that you people get the best of the B schools of India next year. And then students, if you are looking for IP Math, CUET, CLAT, इन सब चीजों की अगर मैं बात करूं तो yes, you people have to visit iconcareers.com. तो स्टूडेंट्स इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को विजिट करो और अपने रेस्पेक्टिव कोर्सेज के बारे में जरूर प्लान करो। नाउ, a person who avoids company and prefers to be alone is, होते हैं ना बहुत सारे लोग अलूफ रहना चाहते हैं। एक वर्ड आपने कभी सुना होगा, अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड, अकेला। इसे बहुत ज्यादा मिंगल अप होना पसंद नहीं होता। दिस मैन रिमेन्स अलूफ। स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी कॉल सच अ पर्सन? फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ग्रेग का मीनिंग होता है क्राउड। तो ग्रेगोरियस इज अ पर्सन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स। Gregorious is the person जिन्हें लोगों के बीच में रहना पसंद है, understand? So that is the meaning of Gregorious. So anyway, first one is the just opposite of what is given here. Second is sociable. Sociable आदमी भी communicative होता है, सबके साथ mix up होता है. Third is reclusive. The correct answer to this question is reclusive. Reclusive का मतलब है isolated होना, aloof होना, सबके साथ mix up नहीं होना. So understand, third option is the correct answer. Unaffable कौन होता है? फ्रेंडली, कॉर्डियल। एफेबल इज अ पर्सन जो सबके साथ इजीली एडजस्ट हो जाता है। एनीवे स्टूडेंट्स, द बेस्ट आंसर इज रिक्लूसिव, बट स्टूडेंट्स योर जर्नी डज नॉट स्टॉप हियर।
You people have to find out at least 5 more synonyms of this word reclusive. तो इसको अपन और क्या कहते हैं? You should know this. चलिए, coming on students, the last question of the day. आज हमने जितने भी questions लिए, we people have taken questions based on various types of personalities. A person who is quick to understand things and make sound judgments. So this man is smart. This man is witty. This man is intellectual. This man is good at taking decisions. इसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, ये लॉजिक बहुत अच्छा देता है, अंडरस्टैंड. तो क्या लगता है, which is the best answer? The first one is naive. Naive is not the correct answer. Naive अपन उसे कहते हैं जो बड़ा भोला भाला होता है. आपके नाइव का मतलब क्या होता है? किसी की भी बातों में आ जाना. तो दिस मैन लैक्स रैशनैलिटी. जो सामने वाला बोलता है बस हम उसी को विश्वास कर लेते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ नाइव. सेकंड इज इंजेन्युअस. इंजेन्युअस दैट एक्चुअली बिकम्स अ सिनोनिम ऑफ नाइव. इंजेन्युअस का मतलब भी बहुत भोला भाला होना. देन स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज श्रूड. श्रूड इज अ पर्सन जो ये थोड़ा सा समझदार होता है. श्रूड इज अ मैन हु इज एस्ट्यूट. श्रूड इज अ मैन हु इज अक्यूट. श्रूड इज अ मैन जो इंटेलिजेंट है, जो स्मार्ट है, शार्प माइंडेड है. केयरलेस हो नहीं सकता. तो यस, द करेक्ट आंसर है श्रूड. और इसके कुछ बहुत अच्छे सिनोनिम्स: acute, then astute, okay, then sharp-minded, then students smart. और क्या पॉसिबल है? तो ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स और भी पॉसिबल है. इन सब का मतलब होता है इंटेलिजेंट होना, स्मार्ट होना. वन मोर वर्ड कैन बी सैगेशियस. वन मोर वर्ड कैन बी perspicacious. ओके, तो ये सब सिनोनिम्स हैं किसके? श्रूड के. बस अपनी वोकैब को इस लेवल पर लेकर जाना है. जब भी कोई नया वर्ड आ जाए, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट एंड एट द सेम टाइम उसके 4-5 सिनोनिम्स हम दे सकें. उस लेवल पर हमको पहुंचना है. तो फिर आप देखोगे कोई भी एग्जाम हो, यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल दोज एग्जाम्स. एंड मोर ओवर, अगर किसी पेपर में वोकैब का डायरेक्ट वेटेज बहुत ज्यादा नहीं भी है, फिर भी स्टूडेंट्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज पैसेजेस को समझने के लिए भी बहुत अच्छी वर्ड्स तो होने ही चाहिए. सी यू सून. बाय बाय फॉर नाउ.